So where are you putting your money now? My money is in part US market, part India market, part startups. That's those are the US three. market में डाल रखा है तो फिर if it's overvalued then because I'm sure US market में small cap थोड़ी उठाया होगा. नहीं मैंने like I invest in technology startups only. The big ones. And the big ones. So my regular investments just keep happening. I invest in mutual funds only. I don't buy direct stocks in India. I invest in ETFs in the US. I don't buy direct stocks there, except for one. I'm bullish on that. Which one? Tesla. So that's the only one that even today you're bullish. Oh yeah, absolutely, 100%. Tesla is going to be a $10 trillion company. Absolutely. Why? Because between अब तो SpaceX के साथ भी सब हो जाएगा, but between EVs, robots, and space, they will just create unprecedented wealth driven by the fact that they'll make virtually everything commoditized and go to zero. So the same thing that Elon says, that nobody will have to plan for retirement because there'll be enough and more money. I'm in the same school. I think that there is going to be a time not too far away in the future, let's say, I don't know, 2 or 3 decades, perhaps even sooner, where people will not have to work. There will be enough and more money distributed to everybody to do whatever they want to do, pursue whatever interest they want. They will be watching, figuring out end infinitum. They will be creating their own content. They'll be gardening. They'll be pursuing this. Nobody has to go to work. Nobody has to travel. Wait, we need to sit down on this thought. आप बोल रहे हो कि सब लोग ऐसा पैसा होगा, सब कमाएंगे. What was that thought? Universal basic income, you feel? So universal basic income is an attribute to that because it becomes the easiest way to understand this. I don't know what the mechanism will be क्योंकि UBI implement करने के लिए political will बहुत strong चाहिए, बहुत ज़्यादा, जो शायद एक democracy में इतनी आसानी से नहीं होगा. But I don't know what the manifestation of UBI will be. But what will essentially happen is कि यार मुझे ऐसा लग रहा है कि कुछ companies हैं जो extraordinary level पे services provide करेंगी at costs that are unheard of, near zero. And they will be sitting on the biggest corpuses that can be generated, which is why I say, and this is my sense, कि a company like Tesla could easily be a $10 trillion company, perhaps even more, क्योंकि वो genuinely value create कर रही है. अब वो taxes के through, subsidies के through, grants के through, CSR के through, whatever it is, they will generate an income into the system. But they will not need as many people as we need today. So imagine the way that it happens right now. And this is a very crude example. And I could be very far away from how it happens. कि एक company बोलती है यार हमें इस जगह पे एक manufacturing city खोलनी है. हमें पता है कि इसकी वजह से थोड़ा सा डिस्ट्रक्शन होगा, इकोलॉजिकल डिस्ट्रक्शन होगा, सोशल डिस्ट्रक्शन भी हो सकता है वगैरह, लेकिन हम उसकी भरपाई करने के लिए तैयार हैं. तो हम इस पूरे मैन्युफैक्चरिंग सिटी को बहुत अच्छे से डेवलप करेंगे, स्कूल्स खोलेंगे, हॉस्पिटल्स खोलेंगे, ओल्ड एज होम्स खोलेंगे, क्रैश खोलेंगे, जॉब्स इनक्रेडिबल होंगी, अच्छी पे पैकेजेस देंगे, ऐसा इंफ्रा बनाएंगे कि पीपल विल फील कि यार ठीक है डेवलपमेंट हुई है. हाँ थोड़ा इधर उधर कुछ हो गया है, बट लॉन्ग टर्म आई थिंक इट्स अ नेट पॉजिटिव. And now extrapolate that to how the world will be. कि कुछ कंपनीज बोलेंगी यार हम जानते हैं कि थोड़ा सा इसमें से कुछ फटेगा, कुछ टूटेगा, कुछ उखड़ेगा, लेकिन हम लोगों का अच्छे से ख्याल रख लेंगे, हम उनको अच्छे से सर्विसेज देंगे, वो जो करना चाहते हैं करेंगे वगैरह, बस हमें अलाउ करो ये करना. जॉब्स तो सबके पास होंगी, लेकिन वो ना मुझे पर्सनली ऐसा लग रहा है ऑप्शनल होंगी. जैसे पैसे कैसे बनेंगे लोग? यार पैसे ना खुद नहीं बनाएंगे. अब ओके, सो पैसे बनाने का कॉन्सेप्ट इज अ वेरी न्यू कॉन्सेप्ट इफ यू रियली थिंक अबाउट इट. जैसे हम इन सिविलाइजेशन हिस्ट्री, हाँ मतलब इन सिविलाइजेशन हिस्ट्री, अगर आपने वो किताब सेपियंस पढ़ी है या आपने इसको ट्रैक किया है, तो ये बहुत सारी चीज़ें जो हम फॉर ग्रांटेड लेते हैं बहुत नई नई है. जैसे मैं कल ही पढ़ रहा था कि ब्रेकफास्ट का कॉन्सेप्ट कितना नया नया है, क्योंकि ब्रेकफास्ट इज नॉट अ मैंडेटरी मील. जैसे आज हमें बोला जाता है द मोस्ट इंपॉर्टेंट मील ऑफ द डे, डोंट एवर स्किप ब्रेकफास्ट वगैरह वगैरह. इट्स ऑल मार्केटिंग गिमिक्स टू प्रमोट अ सर्टेन ब्रांड, चाहे वो कॉर्नफ्लेक्स हो, चाहे वो कुछ पी पैनकेक्स वगैरह ये सब हो. लेकिन इंसान पहले लेट्स से
400-500 साल पहले, तब खाता था जब उसे भूख लगती थी। अब वो एक बड़ा इंसान 3 बार खा सकता है, एक छोटा इंसान एक ही बार खाएगा, कुछ लोग शायद 2 दिन में एक बार खा लेंगे, लेकिन तभी खाएंगे जब भूख लगेगी। एंड खाना मिल जाता था, या तो पेड़ से तोड़ लिया, खुद बना लिया वगैरह। द सेम वे बहुत साल पहले लोग काम पे नहीं जाते थे। Like there was no work, there was no office, there was no concept of showing up at some place. But it was done because of course इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन आया, लोगों की ज़रूरत पड़ी। अब लोगों की ज़रूरत पड़ी एंड लोग लेट्स से नहीं काम करना चाहते, तो फिर एक कॉन्सेप्ट बना कि चलो इनको हम पढ़ाते हैं, क्योंकि पढ़ाने से इनको समाज में इज्जत मिलेगी। लेकिन वो पढ़ाना हमारे लिए काम करना चाहिए, तो हम बहुत सारे बच्चों को ना एक क्लास में डालेंगे, उनको बोलेंगे कि शुरुआत तुम सेम दिन पे करोगे, एंड तुम सेम दिन पे करोगे। सारे बच्चे सेम चीज़ पढ़ेंगे, चाहे तुम स्मार्ट हो चाहे तुम गधे हो। और साल के अंत में एक टेस्ट होगा, उस टेस्ट में जो सबसे स्मार्ट लोग होंगे ना, उनको सबसे बेस्ट नौकरियां मिलेंगी। उनको हम फैक्ट्रियों में बोलेंगे कि तुम टायर बनाओगे, तुम स्टीयरिंग व्हील बनाओगे, तुम स्टीम का ख्याल रखोगे, और वो टायर के एक्सपर्ट बन जाएंगे। VP ऑफ टायर्स, VP ऑफ स्टीयरिंग व्हील, VP ऑफ स्टीम, VP ऑफ कलर पेंट, व्हाटएवर, एंड दैट विल बी देयर ड्रग। तो उनको हम पैसे देंगे, वो पैसा फिर वो और खर्च करेंगे, फिर जो पैसा उनके पास बाद में आने वाला है वो हम उनको आज ही दे देंगे, जिसको हम लोन बोलेंगे। उस लोन पे हम एक ब्याज डालेंगे, उस ब्याज से वो और फंस जाएंगे, क्योंकि अब अगर नौकरी छूट गई तो जो पैसे बाद में सालों तक देने हैं वो कहाँ से देंगे, तो वो उसमें फंस जाएंगे। लाइक सो इफ यू रियली थिंक अबाउट इट, आई एम नॉट बीइंग निहिलिस्टिक अबाउट इट और पेसिमिस्टिक, if you really go into the history of how civilization has functioned and changed, you will see that there has been a very strong reason कि चीजें क्यों हुई हैं, कैसे हुई हैं। गेम बनाया एक। तो I don't know if you've ever asked, because I hope you don't at the age of 28 ask this, कि लोग काम पे क्यों जाते हैं, लाइक क्यों है यहाँ 75 लोग, इनको ही तनख्वाह मिल रही है, तुम अपने जुनून से ये कर रहे हो। लेकिन बहुत सारे लोग हैं जो मुलाजिम हैं, वो फंसे हुए हैं, लाइक दे डोंट वांट टू डू दिस, दे वुड मच रादर स्पेंड टाइम विद देयर किड्स, विद देयर फैमिली, विद देयर एलिंग मॉम और पेरेंट्स बैक इन देयर विलेजेस, व्हाट नॉट, बट दे आर डूइंग इट क्योंकि पैसा 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 पैसा। अब यही पैसा अगर उन्हें मिल जाए, जहां उनकी ज़रूरतें पूरी हो जाएं, उनको शिक्षा मिले, देन द ओनली थिंग दैट आई पर्सनली फील एवरी ह्यूमन विल ऑलवेज वांट इज पर्पस। एक कारण जिसकी वजह से मैं रोज सुबह उठूं, वो कारण बहुत जरूरी है, लेकिन वो कारण काम नहीं हो सकता, या सबके लिए तो काम नहीं हो सकता, लेकिन आज है। आज द बिगेस्ट रीजन व्हाई पीपल गेट अप व्हेनेवर दे गेट अप इज देयर वर्क। इट इज नॉट कि मुझे जिम जाना है, इट इज़ नॉट कि मुझे अपने बच्चों के साथ वक्त बिताना है, इट इज़ नॉट कि आज मैं अपने दोस्तों से मिलूंगा, इट इज़ नॉट कि मैं कुछ नया बनाऊंगा, इट इज़ नॉट कि आज मैं वाइप कोड करके एक ऐप लॉन्च करूंगा। इट इज़ मुझे काम पे जाना है, क्योंकि काम पे नहीं गया तो काम से निकाल दिया जाऊंगा तो EMI नहीं भर पाऊंगा, EMI नहीं भर पाऊंगा तो सिविल स्कोर खट जाएगा, जिंदगी में कभी लोन नहीं मिलेगा, जिंदगी बर्बाद, फिर क्या करेंगे। एंड आई पर्सनली फील दैट शुडंट बी हाउ ह्यूमंस should live or should have ever lived। तो मुझे तो ऐसा लग रहा है कि एक 200-300 साल का एक चर्न आया था, अब धीरे धीरे हम वापस उस एरा में जा रहे हैं जहां होपफुली जितना भी गंद हमने 200-300 साल दुनिया में मचाया वो थोड़ा सा कम हो जाएगा, एंड लोग वापस जाएंगे कि सुबह उठेंगे एंड राज गार्डनिंग कर रहे हैं, अंकुर टेनिस खेल रहा है, आप पॉडकास्ट करेंगे, आप डाल देंगे, लेकिन आपको उससे पैसे कमाने की कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि सब कुछ नियर जीरो पे है। या अगर आप वाकई में कुछ ऐसा कर रहे हैं विच इज़ सो गुड दैट द वर्ल्ड वांट्स, आप ऑटोमेटिकली उससे पैसे कमा लेंगे, लेकिन आपको ज़बरदस्ती कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। तो फिर आगे कैसे बढ़ेंगे हम लोग? आगे, दैट्स अ ग्रेट क्वेश्चन। आगे हम तब बढ़ते हैं जब कुछ जुनून वाले लोग काम करते हैं, जो कि हमेशा रहेंगे राज, हमेशा रहेंगे। उनको वैसे भी मतलब नहीं है, उनको कोई फर्क नहीं पड़ता। लाइक अगर दुनिया का सबसे अमीर इंसान कुत्तों जैसे ऑफिस में काम कर सकता है, तो इसकी एक्सप्लेनेशन सिर्फ यही है कि कुछ लोग हमेशा इस दुनिया को आगे बढ़ाएंगे, एंड हमें उन लोगों को ढूंढने की जरूरत नहीं है।
वो खुद बनते हैं, जिस भी कारण से बने, चाहे वो चाइल्डहुड ट्रॉमा हो या एक सेंस ऑफ पर्पस हो, बट उनको ड्राइव करने के लिए पैसा नहीं चाहिए.